Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. As in the previous lectures, we have studied about the product means what features should be added in the product, what sort of product we have to develop, product, new product development, then product life cycle stages, then packaging, what features should be added to the product, and the quality of the product. Then we have discussed about different pricing strategies, that what are the considerations, what are the factors that we have to consider when we are setting the prices of our products. And then we have studied a different pricing approaches, based approach, then value based approach, then comparators based approach. Then we have studied different pricing strategies, that how we will set the prices of our product mix. Then we have studied different price adjustment strategies, that how we adjust our prices with respect to different types of customers, in different types of situations, in different types of locations, in different types of geographical areas, and how we adjust our prices in international markets. So after studying about product, and after studying about price, now the third P of the principles of marketing is um, the distribution channel. Okay, so we will discuss about marketing channels and supply chain management. That once the product is manufactured, once the product is priced, we have set the price of our products. Now how the product will reach from the producer to the consumer. So there is a distribution channel between the company and between the final consumer, through which the product reaches from the producer to the end consumer. So now we will discuss about marketing channels and supply chain management and retailing. So continuing the lecture. So, the objectives of this lecture would be to know about supply chain management, distribution channel and logistics, inbound logistics, outbound logistics, and reverse logistics, and to understand the roles of retailers in the marketing channel, and to know the major types of retailers, and to understand the marketing decisions facing retailers. Okay, ji. So, first of all, what is supply chain management? Supply chain management is managing the upstream, downstream, value added flow of materials, final goods, and related information among suppliers, the company, the resellers, and the final consumers. Upstream and downstream, जो हमारे flow of raw materials हैं, then जो हमारे final goods हैं, then जो हमारे related information है, वो हमारे सप्लायर्स हमें सप्लाई करते हैं, रॉ मटेरियल हमें सप्लाई करते हैं कंपनी को, देन कंपनी उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर देती है और उसको ट्रांसफ़र कर देती है होल सेलर्स को या रिटेलर्स को। देन होल सेलर्स या रिटेलर्स से वो जो प्रोडक्ट है वो हमारे एंड कंज्यूमर्स तक पहुंच जाती है। सो इस पूरे प्रोसेस को फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द कस्टमर, जो हमारा होल प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम और रिवर्स लॉजिस्टिक्स क्या है? अपस्ट्रीम लॉजिस्टिक्स है मूविंग प्रोडक्ट्स एंड मटेरियल्स फ्रॉम सप्लायर्स टू द फैक्ट्री। सप्लायर्स हमारी फैक्ट्री को जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उसको हम कहते हैं अपस्ट्रीम लॉजिस्टिक्स या फिर इनबाउंड डिस्ट्रीब्यूशन। इनबाउंड मींस कंपनी के अंदर जो रॉ मटेरियल आ रहा है, जो इंफॉर्मेशन आ रही है, जो सप्लायर्स हमें सप्लाई कर रहे हैं हमारी कंपनी को, उसको कहते हैं इनबाउंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी। देन डाउनस्ट्रीम या आउटबाउंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? मूविंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम फैक्ट्री टू रीसेलर्स एंड अल्टीमेटली टू कस्टमर्स। हमारी कंपनी जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, उसको फैक्ट्री से
ट्रांसफ़र कर देती है रीसेलर्स को। रीसेलर्स हमारे कौन हैं? हमारे रिटेलर्स हैं, हमारे होलसेलर्स हैं, उनको प्रोवाइड कर देती है। फिर जो रीसेलर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, जो होलसेलर्स हैं, वो कस्टमर्स को प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम या आउटबाउंड डिस्ट्रीब्यूशन। फैक्ट्री से बाहर जा रहा है मटेरियल्स, जो हैं, जो प्रोडक्ट्स जो हैं वो फैक्ट्री से बाहर जा रहे हैं, उसको कहते हैं आउटबाउंड डिस्ट्रीब्यूशन। देन व्हाट इज रिवर्स डिस्ट्रीब्यूशन? मूविंग broken, unwanted or excess products returned by customer to reseller। कस्टमर्स को हमने, रीसेलर्स को, कस्टमर्स को हमने अपने प्रोडक्ट्स दे दिए, फिर अगर उसमें कोई ब्रोकन है, कोई अनवांटेड है या एक्सेस प्रोडक्ट्स हैं, तो वो कस्टमर्स जो है वो रीसेलर्स को रिटर्न कर देते हैं, या फिर रीसेलर्स जो है वो कंपनी को रिटर्न कर देते हैं। इसको हम कहते हैं रिवर्स डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लायर्स जो है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करता है कंपनी को, जो कि इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, जो कि रॉ मटेरियल्स भी हो सकते हैं, कंपनी को प्रोवाइड करती है। कंपनी उसको गुड्स में कन्वर्ट कर देती है और उसको रीसेलर्स को ट्रांसफ़र कर देती है, जिसको हम कहते हैं आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। कंपनी ने आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स ट्रांसफ़र कर दिए रीसेलर्स को। रीसेलर्स हमारे कौन हैं? हमारे होलसेलर्स हैं, हमारे रिटेलर्स हैं। ठीक है, फिर रीसेलर्स से जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो हमारे कस्टमर्स को पहुंच जाती हैं। फिर अगर कोई ब्रोकन है या फिर कोई एक्सेस है या फिर कोई अनवांटेड है, वो कस्टमर्स जो है वो रीसेलर को रिवर्स भेज देते हैं, रिटर्न कर देते हैं, उसको कहते हैं रिवर्स लॉजिस्टिक्स। या फिर रीसेलर्स के पास कोई एक्सेस है या फिर कोई ब्रोकन है, वो कंपनी को रिटर्न कर देते हैं, इसको हम कहते हैं रिवर्स लॉजिस्टिक्स। इस होल प्रोसेस को, जो कि रॉ मटेरियल से स्टार्ट होता है, सप्लायर से स्टार्ट होता है और कस्टमर पे एंड होता है, इस होल प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, देन व्हाट इज मार्केटिंग चैनल और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल? अ सेट ऑफ इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस मींस एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है। मींस इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं, इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। Involved in the process of making a product or service available for use or consumption by consumer or business user। इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो क्या करती हैं? जो कि प्रोडक्ट या सर्विस को अवेलेबल करती हैं, प्रोवाइड करती हैं, ताकि हम यूज़ कर सकें, कंज्यूमर या बिजनेस यूज़र उसको यूज़ कर सकें। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या मार्केटिंग चैनल, जो कि गुड्स या सर्विसेज को अवेलेबल करती हैं बिजनेस यूज़र या फिर कंज्यूमर्स के को, ताकि वो उसको यूज़ कर सके। इसको हम कहते हैं मार्केटिंग चैनल या फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ओके जी, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। ठीक है, एक तो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स है, जो कि सप्लायर्स हैं, सप्लायर्स इनबाउंड लॉजिस्टिक प्रोवाइड करते हैं, बट वी विल डिस्कस आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स कि किस तरीके से जो रीसेलर्स हैं वो हमारे गुड्स और सर्विसेज को कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं। हम लोग रीसेलर्स को डिस्कस करेंगे। सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट रिटेलिंग, एंड इन द नेक्स्ट चैप्टर देन वी विल डिस्कस अबाउट होलसेलिंग। ठीक है, रिटेलिंग क्या है? रिटेलिंग includes all the activities involved in selling goods or services directly to final customers for their personal non-business use। जो हमारे गुड्स और सर्विसेज हैं जो फाइनल कस्टमर्स तक पहुंच जाते हैं, ताकि वो उसको पर्सनली यूज़ कर सकें, नॉन बिजनेस यूज़ कर सकें। मींस बिजनेस के लिए यूज़ ना करें, बल्कि उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करें, पर्सनली कंज्यूम करें, पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज़ करें, उसको कहते हैं रिटेलिंग। ठीक है, देन हु इज़ अ रिटेलर? रिटेलर इज़ अ बिजनेस हु सेल्स कम प्राइमरली फ्रॉम रिटेलिंग आर रिटेलर्स। जो कि रिटेलिंग करता है, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को फाइनल कस्टमर्स तक पहुंचाता है, उस पर्सन को, उस इंडिविजुअल को हम लोग कहते हैं रिटेलर। देन मोस्टली रिटेलिंग इज डन थ्रू स्टोर्स। स्टोर्स के थ्रू होती है, लाइक हमारा पेशावर में डिफरेंट स्टोर्स है, एवॉन स्टोर है, उसमें हमारे पर्सनल कंजम्पशन के गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, या राइस हो गई, ये हमारे कन्वीनियंस स्टोर्स हैं, कन्वीनियंस गुड्स हैं।
जो कि हमें यूज़ होते हैं, हमारे पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज़ होते हैं, जो हम लोग अपने लिए जाते हैं मार्केट से उसको परचेज़ कर लेते हैं और उसको पर्सनली अपनी पर्सनल यूज़ के लिए हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं। इनको कहते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे कि एवॉन स्टोर हो गया, डिवॉटसन हो गया, हाइपर मॉल हो गया, इंसाफ स्टोर हो गया, इसमें सारे हमारे कन्वीनियंस गुड्स होते हैं। हम लोग जाके वहाँ से परचेज़ कर लेते हैं और उसको अपनी पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज़ करते हैं। देन रिटेलिंग सिर्फ स्टोर्स के थ्रू नहीं हो सकती, रिटेलिंग जो है नॉन स्टोर्स के थ्रू भी हो सकती है। नॉन स्टोर रिटेलिंग कैसे है? थ्रू डायरेक्ट मेल हम लोग रिटेलिंग कर सकते हैं, थ्रू टेलीफोन्स हम लोग कर सकते हैं, थ्रू इंटरनेट हम लोग गुड्स जो है कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। डोर टू डोर हम लोग अपनी प्रोडक्ट की सेलिंग कर सकते हैं, डोर टू डोर जाकर हम लोग प्रोडक्ट्स जो है वो कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। ये क्या है? ये एग्जांपल्स हैं नॉन स्टोर रिटेलिंग की। Then, what are the types of retailers? Types of retailers are specialty stores, department stores, supermarkets, convenience stores, discount stores, super stores, off price retailers. Further जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोग इन सबको डिटेल से डिस्कस करेंगे. Okay, G. Then classification of retailers. Retailers are classified in terms of several characteristics. Retailers को हम लोग different characteristics की basis पे classification करते हैं. कौन कौन से characteristics है? Amount of service they offer, the breadth and depth of the product of their product lines, then relative prices they charge, then organizational approaches. Now we will discuss all of them one by one. Number first is amount of services. Different products require different amount of services and customer service preferences vary. अमाउंट ऑफ सर्विसेज की बेस पे हम लोग रिटेलर्स को कैसे डिवाइड करते हैं कि कुछ ऐसी गुड्स हैं जिसमें हमें रिटेलर्स की सर्विसेज की ज़्यादा ज़रूरत है, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिसमें हमें रिटेलर की सर्विसेज की ज़रूरत नहीं होती, और जो कस्टमर के प्रेफरेंसेस हैं रिगार्डिंग सर्विसेज वो भी डे टू डे चेंज होती जाती हैं. देन इसमें on the basis of amount of service, the categorization of retailers is self service retailer, limited service retailer, full service retailer. Now, what is self-service retailers? Self-service retailers, such as most grocery shopping experiences where the product is available on shelf for the shopper selection. Products जो हैं shelf पड़ी हुई हैं shopper के selection के लिए, हम लोग जाके खुद से प्रोडक्ट को चेक करते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ उसका कंपैरिजन करते हैं और उसमें से कोई सी एक सेलेक्ट कर लेते हैं. हमें रिटेलर की हेल्प आउट की, उसके सर्विसेज की हमें ज़रूरत नहीं होती, हमें इंफॉर्मेशन उसके लिए नहीं चाहिए होता. ये मोस्टली होता है कन्वीनियंस गुड्स के केस में. कन्वीनियंस गुड्स फॉर एग्जांपल हमारे फूड हैं, वेजिटेबल्स हैं, सीरियल्स हैं, उसमें हमें किसी की हेल्प आउट की, किसी टाइप की इंफॉर्मेशन की और ज़्यादा सोचने की, ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं होती. हम फ़ौरन से जाते हैं, जो भी हमें कन्वीनियंस हमारे गुड्स हैं वो हम लोग परचेज़ कर लेते हैं और ले लेते हैं. तो इसमें हम लोग सेल्फ सर्विस हम हमारा सेल्फ सर्विस होता है, हमें रिटेलर्स की ज़रूरत नहीं होती यहाँ पे. जो मोस्टली मॉल्स होते हैं जिसमें फॉर एग्जांपल फ्रीज़र लगे होते हैं या फिर शॉप्स होती हैं, उसमें आप कॉइन्स डाला, उसमें नीचे से निकल आते हैं. कोल्ड ड्रिंक हो गया या फिर कोई चॉकलेट आपने परचेज़ करनी है, उसमें सेल्फ सर्विस होती है, रिटेलर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती. या फिर आपके जो एटीएम मशीन्स हैं वो सेल्फ सर्विस रिटेलर्स हैं, आप लोग जाते हैं खुद से उसमें वर्कआउट करते हैं और कैश जो है वो विदड्रॉ कर लेते हैं. आपको रिटेलर की हेल्प आउट की ज़रूरत नहीं होती, किसी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती. सो इसको हम लोग कहते हैं सेल्फ सर्विस रिटेलर्स. Then limited service retailers क्या हैं? They provide more sales assistance because they carry more shopping goods.
लिमिटेड सर्विस रिटेलर जो हैं आपको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये किस केस में होता है? शॉपिंग गुड्स के केस में होता है। विच नीड्स कस्टमर इंफॉर्मेशन, कस्टमर्स को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, लिमिटेड सर्विस रिटेलर जो है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। इंक्रीज्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑब्वियसली रिटेलर जो है आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्रीज होती है तो ऑब्वियसली वो ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है कस्टमर्स को, कस्टमर्स से फिर वो हाई प्राइसेस चार्ज करते हैं। ये किस केसेस में होता है? फर्नीचर्स के केसेस में, या फिर मोबाइल फ़ोन्स में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, क्लोथिंग हो गई, जिसमें हमें थोड़ा बहुत हम लोग सोचते हैं, कंपैरिजंस करते हैं, ठीक है। अनलाइक कन्वीनियंस गुड्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन शॉपिंग गुड्स है, हम थोड़ा सा सोचते हैं और थोड़े कंपैरिजंस करते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिसीजन लेते हैं कि हमें कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना है। देन फुल सर्विस रिटेलर्स, ये किस केस में होते हैं? ये स्पेशलिटी गुड्स के केस में होते हैं। Like salespeople assist customers in every phase of shopping process. Full service store carry specialty goods होते हैं for which customers need more information and like to be waited on. हमें बहुत सी information चाहिए होती है उसके बारे में। So ये full service retailers हमें मुकम्मल information provide करते हैं product के बारे में। More service results in high operating cost which is then passed to customers as high prices. Obviously customer से फिर high charge करते हैं। Examples क्या हैं इसकी? Luxury cars हैं, लग्जरी वॉचेस हैं, प्रोफेशनल फोटोग्राफिक इक्विपमेंट्स हैं जिसमें टेक्निकलिटीज़ इतनी होती हैं कि हमें मुकम्मल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, टाइम कंज्यूम करते हैं, हम शॉप करने में सोचते हैं, कंपैरिजंस करते हैं। देन लग्जरी हाई फैशन क्लॉथिंग, उसके बाद हम लोग डिसीजन लेते हैं। ओके जी। फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेलर ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सर्विसेज, कि वो कितनी अमाउंट की हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। देन सेकंड इज प्रोडक्ट लाइन, रिटेलर्स कैन बी क्लासिफाइड बाय लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ देयर प्रोडक्ट असॉर्टमेंट। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ प्रोडक्ट असॉर्टमेंट एज वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स, कि हमारी जो प्रोडक्ट मिक्स है, किसी भी प्रोडक्ट की आप एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल आप सैमसंग ब्रांड की एग्जांपल ले लें, उसकी डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस हैं। एक प्रोडक्ट लाइन है फॉर एग्जांपल सैमसंग के टेलीविजन्स, देन सेकंड प्रोडक्ट लाइन है सैमसंग के मोबाइल फ़ोन्स, देन थर्ड प्रोडक्ट लाइन है सैमसंग के एयर कंडीशनर्स, देन सैमसंग के रेफ्रिजरेटर्स हैं, ठीक है। तो जितनी उनकी नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस हैं, ए प्रोडक्ट लाइन, बी प्रोडक्ट लाइन, सी, डी, उसको हम लोग कहते हैं हमारे प्रोडक्ट मिक्स की विड्थ है, ठीक है। देन फर्दर जो उनकी सिर्फ एक प्रोडक्ट लाइन है, जो टेलीविज़न सैमसंग के टेलीविजन्स हैं, उनकी फिर फर्दर कैटेगराइजेशन है। प्लाज्मा टीवी है, फिर उसमें एलईडी टीवी है, फिर उसमें एलसीडी टीवी है। तो जितनी उसकी कैटेगराइजेशन है विद इन वन प्रोडक्ट लाइन, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइन की हमारी लेंथ है, ठीक है। फिर एक जो फर्दर उनकी कैटेगराइजेशन है, एलसीडी टीवी है, उसमें सीरीज 5 है, सीरीज 4 है, सीरीज 3 है, सीरीज 2 है, उसको हम लोग कहते हैं हमारे प्रोडक्ट लाइन की डेप्थ है, ठीक है जी। सो retailers can be classified by length and breadth of their product assortment, कि प्रोडक्ट की लेंथ और ब्रेथ क्या है, उसकी बेस पे हम लोग रिटेलर्स को क्लासीफाई करते हैं। स्पेशलिटी स्टोर्स हैं, हमारे डिपार्टमेंट स्टोर्स हैं, हमारे सुपरमार्केट्स हैं, कन्वीनियंस स्टोर्स हैं, सुपर स्टोर्स हैं और कैटेगरी किलर्स हैं, ठीक है। देन नंबर फर्स्ट इज अवर स्पेशलिटी स्टोर। स्पेशलिटी स्टोर्स क्या है? नैरो प्रोडक्ट लाइन्स है विद डीप असॉर्टमेंट्स विद इन दोज लाइन। स्पेशलिटी स्टोर्स में नैरो प्रोडक्ट लाइन्स होती हैं, लेकिन उन नैरो प्रोडक्ट लाइन्स में डीप असॉर्टमेंट होती है, उसी से हम लोग जो है अपने मैक्सिमम प्रॉफिट्स जो है जनरेट करते हैं। प्रोडक्ट्स लिमिटेड होती हैं, लेकिन प्रॉफिट्स हम लोग उससे मैक्सिमम अर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे डमास डायमंड्स हो गए, हमारी बॉडी शॉप हो गई, नाइकी हो गया, ठीक है। लिमिटेड प्रोडक्ट लाइंस हैं इनकी, लेकिन उसमें हमारी जो है डीप असॉर्टमेंट्स हैं।
देन हमारे सेकंड हमारे आ जाते हैं डिपार्टमेंट स्टोर्स। डिपार्टमेंट स्टोर्स क्या है? रिटेल ऑर्गेनाइजेशन दैट कैरीज अ वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट लाइंस। इसमें हमारी प्रोडक्ट लाइंस की वाइड वेराइटीज होती हैं। क्लॉथिंग है, होम फर्निशिंग्स हैं, हाउस होल्ड गुड्स हैं। ईच लाइन इज ऑपरेटेड एज अ सेपरेट डिपार्टमेंट। मैनेजमेंट, स्पेशलिस्ट, बायर्स और मर्चेंडाइज। क्लॉथिंग का एक सेपरेट डिपार्टमेंट है, होम फर्निशिंग का सेपरेट डिपार्टमेंट है, ठीक है। दे एड प्रमोशनल प्राइसिंग टू मीट डिस्काउंट थ्रेड्स। प्रमोशनल प्राइसिंग ऑफर करते हैं, लेस देन बेसिक प्राइसेस जो है कस्टमर्स को ऑफर करते हैं। एग्जांपल्स आ जाती हैं हमारी यूटिलिटी स्टोर्स आ जाते हैं, हमारे CSD इसमें डिपार्टमेंटल स्टोर्स में आ जाते हैं। ओके जी। देन हमारे सुपरमार्केट्स। सुपरमार्केट्स क्या है? लार्ज, लो कॉस्ट, लो मार्जिन, हाई वॉल्यूम सेल्फ सर्विस स्टोर्स होते हैं दैट कैरीज अ वाइड वेराइटी ऑफ फूड, लॉन्ड्री, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स हमारे आप ले लें, डी वॉटसन की एग्जाम्पल ले लें, वदूद होम स्टोर्स की एग्जाम्पल ले लें। देन हमारे कन्वीनियंस स्टोर्स हैं। कन्वीनियंस स्टोर्स कौन से हैं? जो कि स्मॉल स्टोर्स होते हैं लोकेटेड नियर रेजिडेंशियल एरिया दैट इज ओपन लॉन्ग आवर्स 7 days a week and carries a limited line of high turnover convenience good. High turnover convenience goods means स्टॉक आया, सेल आउट हो गया, फिनिश हो गया, देन अगेन स्टॉक आया, सेल आउट हो गया, देन अगेन स्टॉक आया, मीन्स हाई टर्नओवर रेट होता है उसका। फ़ौरन से आता है, फ़ौरन से फिनिश भी हो जाता है। कन्वीनियंस गुड्स होते हैं, मीन्स जो नॉर्मल हमारे कन्वीनियंस गुड्स हैं, राइस, शुगर, सॉल्ट, फ्लोर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन चीज़ों के एग्जाम्पल। सो कन्वीनियंस स्टोर्स कौन से हैं? जो कि हमारे घरों के करीब होते हैं, लेट नाइट्स तक ओपन होते हैं, छुट्टी नहीं होती उसमें, 7 days a week ओपन होते हैं, सुबह से रात तक ओपन होते हैं। कन्वीनियंस गुड्स होते हैं, जैसे ही हमें कुछ प्रोडक्ट चाहिए होता है हम फ़ौरन से जाते हैं। कन्वीनियंस होता है हमारे घर के करीब होता है। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल स्टोर्स नियर अवर होम्स सेलिंग फूड आइटम्स होते हैं, उसमें मोबाइल कार्ड्स होते हैं, सिलेंडर के लिए गैस अवेलेबल होती है, और जितनी भी नेसेसिटीज़ ऑफ हमें हमें ज़रूरत होती हैं वो वहाँ पे हमारी कन्वीनियंस स्टोर्स में अवेलेबल होती हैं। देन हमारे सुपर स्टोर्स हैं। सुपर स्टोर्स में क्या आ जाता है? मच लार्जर देन अ रेगुलर सुपर मार्केट दैट कैरीज अ लार्ज असॉर्टमेंट ऑफ रूटीनली परचेज फूड प्रोडक्ट्स, नॉन फूड आइटम्स एंड सर्विसेज होते हैं। कम्बिनेशन ऑफ फूड, इवन फ्रेश बेक्ड ब्रेड्स भी उसमें अवेलेबल होते हैं। किचन गैजेट्स होते हैं, बेबी फूड्स एंड क्लोथिंग एक्सेट्रा होते हैं। फॉर एग्जांपल कार4 की एग्जांपल ले लें, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में न्यू लॉन्च हुआ है कार4, जिसमें वाइड रेंज ऑफ असॉर्टमेंट होती हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, नॉन फूड आइटम्स हैं, क्लॉथिंग है, शूज़ हैं, ठीक है, उसमें बेकरी आइटम्स है, उसमें बेबी फूड आइटम्स हैं, किचन गैजेट्स हैं, एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर। देन कैटेगरी किलर्स क्या होते हैं? जाइंट स्पेशलिटी स्टोर्स होते हैं दैट कैरीज अ वेरी डीप असॉर्टमेंट ऑफ पर्टिकुलर लाइन एंड स्टाफ्ड बाय नॉलेजेबल एम्प्लॉयज, ठीक है। एक पर्टिकुलर लाइन होती है, कोई भी एक पर्टिकुलर लाइन, फॉर एग्जांपल बुक्स हो गए, फॉर एग्जांपल बेबी सेक्शन हो गया, या फिर टॉयज़ हो गए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, कोई भी एक पर्टिकुलर सेक्शन होता है और उसमें डीप असॉर्टमेंट होती है, डीप वैरायटी अवेलेबल होती है, उसको कहते हैं कैटेगरी किलर। कैटेगरी किलर मतलब कोई एक कैटेगरी होता है। कैटेगरी किलर इज अ फ्रेज यूज टू डिफाइन अ लार्ज रिटेलर, ठीक है। कोई एक कैटेगरी है, उसका एक बहुत बड़ा लार्ज रिटेलर होता है किसी भी एक कैटेगरी का, दैट इफेक्टिवली किल्स अदर स्टोर्स और प्रोडक्ट्स इन द सेम कैटेगरी। लार्ज रिटेलर होता है किसी भी एक प्रोडक्ट का जो कि वाइड वैरायटी अवेलेबल होती है, लेस प्राइसेस पे अवेलेबल होता है, और दैट किल्स अदर स्टोर्स और प्रोडक्ट्स इन द सेम कैटेगरी। ऑब्वियसली कस्टमर्स फिर उसी जगह से लेते हैं क्योंकि वहाँ पे उनको वाइड वैरायटी अवेलेबल होती है, लो प्राइसेस पे अवेलेबल होते हैं, और वहाँ पे नॉलेजेबल स्टाफ अवेलेबल होता है, नॉलेजेबल एम्प्लॉयज़ अवेलेबल होते हैं, तो कस्टमर्स वहीं से लेते हैं।
ठीक है। एग्जाम्पल है हमारी सेफोरा की एग्जाम्पल ले ली, प्रोवाइडिंग वाइड रेंज ऑफ स्किन केयर एंड फ्रेग्रेंसेज हो गए। देन आइकिया की आप एग्जाम्पल ले लें, डिफरेंट सेक्शंस होते हैं वहाँ पे, बुक्स हो गए, बेबी सेक्शंस हो गए, पेट सप्लाईज हो गए, स्पोर्टिंग गुड्स हो गए, पार्टी गुड्स हो गए, उनकी लार्ज वाइड वेराइटी होती है और रीजनेबल प्राइसेस पे आपको अवेलेबल होते हैं। ओके जी, देन हमारे सर्विस रिटेलर्स हैं। सर्विस रिटेलर्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे बैंक्स हैं, हमारे एयरलाइंस हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, सलोन्स हैं, हेयर ड्रेसर्स हैं, ड्राई क्लीनर्स हैं, जो कि हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनको हम कहते हैं सर्विस रिटेलर्स। देन classification of retailers on the basis of relative prices. Retailers can be classified on the basis of prices they charge. Most retailers charge regular prices and offer normal quality goods and customer service. फिर जो अदर retailers होते हैं, they offer high quality goods and services at high prices. So the retailers that feature low prices are discount stores and off-price retailers. Then off-price retailers are further classified into independent off-price retailers, factory outlets and warehouse clubs. ओके जी, डिस्काउंट स्टोर्स हमारे क्या होते हैं? सेल्स स्टैंडर्ड मर्चेंडाइजेस एट लोअर प्राइसेस by accepting lower margins and selling high volumes. हाई वॉल्यूम पे सेल करते हैं और लो प्राइस पे सेल करते हैं और लो प्रॉफिट मार्जिन्स को एक्सेप्ट करते हैं। क्यों लो मार्जिन, क्यों लो प्राइसेस पे सेल आउट करते हैं? दे गेट एक्सपेंसेस, अपने जो एक्सपेंसेस हैं उसको कट ऑफ कर देते हैं बाय ऑफरिंग फीवर सर्विसेज, ऑपरेटिंग इन लो रेंट फैसिलिटीज़ पे ऑपरेट करते हैं, हैविली ट्रेवल डिस्ट्रिक्ट्स में ऑपरेट करते हैं। इस तरह से वो लोग अपनी प्राइसेस को रिड्यूस करते हैं और हाई वॉल्यूम पे सेल्स करते हैं, डिस्काउंट पे प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। द नंबर सेकंड इज ऑफ प्राइस रिटेलर्स। ऑफ प्राइस रिटेलर्स क्या हैं? दैट बाय लेस देन रेगुलर होलसेल प्राइसेस एंड सेल्स एट लेस देन रिटेल प्राइस। ठीक है, होलसेल प्राइसेस से कम प्राइसेस पे परचेज करते हैं और जो नॉर्मल रिटेलर्स जो रिटेल प्राइस पे सेल करते हैं, उन रिटेल प्राइस से कम प्राइसेस पे ये लोग सेल करते हैं, इसको कहते हैं ऑफ प्राइस रिटेलर्स। एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं हमारे फैक्ट्री आउटलेट्स, हमारे इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइस रिटेलर्स और हमारे वेयर हाउस क्लब्स। फैक्ट्री आउटलेट्स क्या हैं? एन ऑफ प्राइस रिटेलिंग ऑपरेशन that is owned and operated by a manufacturer and that normally carries the manufacturer surplus. मैन्युफैक्चरर के सरप्लस को ये लोग सोल्ड आउट करते हैं, डिसकंटिन्यूड प्रोडक्ट्स को सोल्ड आउट करते हैं या फिर इरेगुलर गुड्स को सोल्ड आउट करते हैं एट ऑफ प्राइसेस, एट लेस प्राइसेस. Heavy discounts are given to clear the outdated stock and to make place for the new stock. आउटडेटेड स्टॉक को सेल आउट कर देते हैं, ड्यू टू माइनर डिफेक्ट्स होते हैं उसमें, इस वजह से उसको लो प्राइसेस पे सेल आउट करते हैं, टू क्लियर अप सरप्लस स्टॉक एंड टू एलिमिनेट डिस्ट्रीब्यूटर कॉस्ट। फैक्ट्री आउटलेट में खाड़ी के फैक्ट्री आउटलेट के एग्जांपल ले लें। खाड़ी का जो फैक्ट्री आउटलेट है उसमें नॉर्मल जो खाड़ी के स्टोर में एक ड्रेस है उसकी प्राइस है से 3000, तो जो खाड़ी का फैक्ट्री आउटलेट है उसमें वो ड्रेस आपको इजीली अवेलेबल होता है 900 में। रीज़न क्या है? आउट ऑफ स्टॉक गुड्स होते हैं उसमें, उनके पास जो वैरायटी है वो ख़त्म हो गए होते हैं, साइजेस उनके पास फिनिश हो गए होते हैं या फिर कोई माइनर डिफेक्ट होता है, ऐसे पता नहीं चलता लेकिन माइनर डिफेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से वो उनको फैक्ट्री आउटलेट में लो प्राइसेस पे सेल आउट कर देते हैं। अच्छा जी, देन आवर इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइस रिटेलर्स। इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइस रिटेलर्स क्या हैं? एन ऑफ प्राइस रिटेलर दैट इज आइदर ओन्ड एंड रन बाय एन एंटरप्रेन्योर और इज अ डिवीजन of a larger retail corporation, engages in selling of goods at less than standard wholesale price.
ठीक है, लेस होलसेल प्राइस से कम पे सेल आउट करते हैं। द ऑफ प्राइस रिटेलर्स बाइज द मैन्युफैक्चरर्स ओवर स्टॉक्ड गुड्स एट लो प्राइसेस। जो मैन्युफैक्चर के ओवर स्टॉक गुड्स हैं उसको लो प्राइसेस पे परचेज कर लेते हैं और फिर उसको लो प्राइसेस पे सेल आउट कर देते हैं। दे ऑल्सो एक्वायर गुड्स फ्रॉम बैंकक्रप्ट स्टोर्स। जो स्टोर्स बैंकक्रप्ट हो जाते हैं उनके गुड्स को ये लोग लो प्राइसेस पे परचेज कर लेते हैं। इरेगुलर प्रोडक्ट्स एंड अनसोल्ड एंड ऑफ सीजन प्रोडक्शन को परचेज कर लेते हैं, देन उसको होलसेल प्राइसेस पे लेस देन स्टैंडर्ड होलसेल प्राइसेस पे उसको सोल्ड आउट कर देते हैं। एग्जाम्पल है रेड टैग की, आप एग्जाम्पल ले लें। ऑफर्स अ प्लेजेंट शॉपिंग एक्सपीरियंस विद ग्रेट वैरायटी एट अनबीटेबल प्राइसेस। बहुत लेस प्राइसेस पे वो आपको वाइड ग्रेट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। अच्छा जी, देन नंबर थर्ड इज वेयर हाउस क्लब्स, जिसको हम कहते हैं होल सेल क्लब या फिर मेंबरशिप वेयर हाउसेस। It's also an off-price retailer that sells a limited selection of brand name grocery items, appliances, clothing at deep discounts to members who pay annual membership fee. ठीक है जी, जो एनुअल मेंबरशिप फी पे करता है, जो उनके साथ रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उसको ये लोग लो प्राइसेस पे डीप डिस्काउंट्स पे गुड्स प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, तो लो प्राइसेस पे कैसे ये लोग प्रोवाइड करते हैं? जो फ्रिल्स हैं, प्रोडक्ट की जो फ्रिल्स हैं, मीन्स जो नॉन एसेंशियल फीचर्स हैं प्रोडक्ट्स के, उसको ये लोग रिमूव कर देते हैं टू कीप द प्राइसेस लो, एंड एनुअल मेंबरशिप फ़ी भी चार्ज करते हैं। ठीक है, जो नॉन एसेंशियल फीचर्स हैं उसको रिड्यूस कर देते हैं ताकि प्रोडक्ट की प्राइस लो हो जाए और फिर लो प्राइस पे कस्टमर को प्रोवाइड करें, और प्लस एनुअल मेंबरशिप फ़ी भी चार्ज करते हैं कस्टमर से। इस तरह जो प्रोडक्ट की प्राइस हैं और प्रॉफिट जो है उसको ये लोग ओवरकम कर लेते हैं, प्रॉफिट को कस्टमर से गेन कर लेते हैं। इस तरह से मेंबरशिप फ़ी चार्ज करके जो प्रॉफिट्स हैं वो गेन कर लेते हैं कस्टमर से। मोर एम्फेसिस ऑन प्राइस देन सर्विस और स्टोर एस्थेटिक्स। इनका जो एम्फेसिस होता है वो प्राइस पे होता है। जो सर्विसेज वो प्रोवाइड करनी है या नहीं करनी, आफ्टर सेल सर्विसेज है, मेंटेनेंस सर्विसेज है, प्रोवाइड करनी है या नहीं करनी, या स्टोर के एस्थेटिक्स क्या है, इस पे उनका फोकस नहीं होता। इनका जो मेन फोकस होता है वो होता है प्राइस पे, कि हम किस तरह लो प्राइस पे कस्टमर्स को गुड्स प्रोवाइड करें। एग्जांपल्स हमारे सैम्स क्लब की एग्जांपल है, कॉस्टको की एग्जांपल आप ले लेंगे, हमारे वेयर हाउस क्लब होलसेल क्लब्स हैं। Then a classification of retailers on the basis of organizational approach. Retail store banding together under some form of corporate or contractual organizations. Types of retail organizations क्या हैं? Corporate chains हैं, वॉलेंट्री चेन्स हैं, रिटेलर कोऑपरेटिव्स हैं, देन फ्रेंचाइज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और मर्चेंडाइज कॉन्ग्लोमरेट्स हैं। कॉरपोरेट चेन स्टोर्स क्या हैं? एक प्रोडक्ट के डिफरेंट स्टोर्स हैं। फॉर एग्जांपल आप सेफ वे की एग्जांपल ले लें, ग्रॉसरी स्टोर्स की एक चेन है जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ में है। देन सीवीज की एग्जांपल ले लें, ड्रग स्टोर के चेन्स हैं। विलियम सोनोमा जो है कुकवेयर और डाइनर वेयर एंड हाउस वेयर की चेन्स हैं। ठीक है, देन हमारे वॉलंट्री चेन्स हैं। वॉलंट्री चेन्स में आ जाते हैं हमारे wholesalers, sponsored groups of independent retailers engage in bulk buying and common merchandising. एग्जाम्पल में आप ले लें इंडिपेंडेंट ग्रोसर अलायंस की एग्जाम्पल ले लें, डू इट बेस्ट हार्डवेयर्स की एग्जाम्पल ले लें, वेस्टर्न ऑटो, ट्रू वैल्यू की एग्जाम्पल ले लें। इंडिपेंडेंट रिटेलर्स हैं, बल्क में परचेज करते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं वॉलंट्री चेन्स। Then third is retailer cooperatives. What are retailer cooperatives? Groups of independent retailers who set up a central buying organization and conduct joint promotion efforts. Independent retailers हैं, ठीक है, लेकिन सेंट्रल बाइंग ऑर्गेनाइजेशन है। एक सेंट्रल बाइंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि उन तमाम इंडिपेंडेंट रिटेलर्स के लिए बाइंग करता है और प्रमोशनल एफर्ट्स जो हैं इन इंडिपेंडेंट रिटेलर्स के वो जॉइंट होते हैं। एग्जाम्पल्स में आप ले लें, एसोसिएटेड ग्रोसरीज, ग्रोसर्स की एग्जाम्पल ले लें ठीक है,
उसके बाद हमारे फोर्थ नंबर पे आ जाते हैं फ्रेंचाइज ऑर्गेनाइजेशंस। फ्रेंचाइज ऑर्गेनाइजेशंस फॉर एग्जांपल हमारे मैकडोनल्ड्स हैं, सबवे हैं, पिज़्ज़ा हट हैं, जिसमें एक फ्रेंचाइजर होता है जो कि मैन्युफैक्चरर या होल सेलर है, और एक फ्रेंचाइजी होता है जो कि इंडिपेंडेंट बिजनेस पीपल है। तो एक जो फ्रेंचाइजर है वो एक मेन कंट्री में होता है, लेकिन फिर डिफरेंट कंट्रीज जो हैं उसकी फ्रेंचाइजीज बना लेते हैं। जैसे कि हमारे मैकडोनल्ड्स की एग्जांपल ले लें, सबवे की एग्जांपल ले लें, पिज़्ज़ा हट की एग्जांपल ले लें। ठीक है, उसका ना ट्रेड नेम यूज़ करते हैं, पैटेंट यूज़ करते हैं, गुडविल फ्रेंचाइजर ने जो डेवलप की होती है उसको यूज़ करते हैं फ्रेंचाइजीज। देन हमारे मर्चेंडाइजिंग कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, free form corporations that combine several diversified conglomerates retailing lines and firms under central ownership along with some integration of their distribution and management functions। इसमें हमारी एग्जांपल्स आ जाती हैं, हमारी लिमिटेड ब्रांड्स की एग्जांपल्स आ जाती हैं। देन हमारे डिफरेंट मार्केटिंग डिसीजंस जो कि रिटेलर्स ने लेने होते हैं। कौन से मार्केटिंग डिसीजंस हैं जो हमारे रिटेलर्स ने लेने होते हैं? इसमें आ जाते हैं हमारे टारगेट मार्केट एंड पोजीशनिंग के डिसीजंस। रिटेलर्स हैव टू टेक डिसीजन अबाउट देयर टारगेट मार्केट एंड पोजीशनिंग के अपस्केल टारगेट मार्केट होगा, अप स्केल, मिड स्केल या डाउन स्केल। अप स्केल मीन्स हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स होंगे फॉर अपर क्लास, या फिर लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होंगी फॉर मिडिल एंड डाउन स्केल शॉपर्स। किस बेसिस पे आपने अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करना है? ठीक है, जब तक आप अपने until the target market and positioning is not defined, retailers cannot make decisions about advertising. Obviously, what on what basis you have selected your target market and on what basis you are positioning your product, then your advertising decisions will be according to that. अगर आप हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना रही हैं, फॉर हाई क्लास बना रही हैं, फिर आपका एडवर्टाइजिंग मीडिया, आपकी जो प्रमोशनल कैंपेन है वो भी उसके अकॉर्डिंगली होगी। आप कोई बिजनेस मैगजीन में अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करेंगे, देन सर्विसेज आप उसी के अकॉर्डिंगली जो है हाई क्लास सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। देन स्टोर डेकोर भी आप उसके अकॉर्डिंगली एक्स्ट्रावेजेंट स्टोर डेकोर आप करेंगे। ठीक है, देन decisions about your product assortment, about your service mix, about your store's atmosphere should offer differentiated product। ठीक है, प्रोडक्ट कैसी होनी चाहिए, प्रोडक्ट असॉर्टमेंट, what type of product assortment, differentiated product that no other competitor carries, कि आपकी प्रोडक्ट में और competitor की प्रोडक्ट में मेजर सिग्निफिकेंट डिफ्रेंसिएशन होनी चाहिए। Then service mix, invite customers to ask questions, customer से आपको आप feedback लें, consult service representatives in person, इन पर्सन आप कस्टमर से पूछें या थ्रू फोन आप उससे फीडबैक लें। देन स्टोर्स का एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए, लेआउट, फिजिकल लेआउट स्टोर का कैसा होना चाहिए कि मूविंग अराउंड इन स्टोर शुड बी इजी। ठीक है, स्टोर का एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए। Then retailers have to take decisions about pricing, that pricing policy must fit its target market and positioning। जिस तरह से आपने अपनी टारगेट मार्केट की है, जिस तरह से आपने पोजिशनिंग की है, तो आपको फिर प्राइसिंग भी उसके अकॉर्डिंगली सेट करनी है। हाई मार्कअप्स ऑन लो वॉल्यूम्स लाइक स्पेशलिटी स्टोर्स, अगर आपने पोजिशनिंग की है हाई क्वालिटी में, तो फिर स्पेशलिटी गुड्स कौन से होते हैं जिसमें आप लो वॉल्यूम सेल करते हैं, लेकिन लो वॉल्यूम से आप लोग हाई मार्कअप्स अटेन कर लेते हैं। या फिर आप डिस्काउंट स्टोर्स की बेसिस पे आपने अपने प्रोडक्ट को पोजीशन किया है, तो फिर आप लो मार्कअप्स लेंगे। ऑब्वियसली डिस्काउंट पे आप प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को प्रोवाइड करेंगे और हाई वॉल्यूम पे आप अपने प्रोडक्ट्स की सेल आउट करेंगे। देन डिसीजन अबाउट प्रमोशन मीडिया, के एडवर्टाइजिंग कैसी होनी चाहिए, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशंस एंड डायरेक्ट मार्केटिंग, ये सारे डिसीजंस रिटेलर्स ने लेने हैं। ये प्रमोशनल मीडिया हम लोग फर्दर अपने चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। प्रमोशन इज अवर फोर्थ पी इन द प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। आफ्टर प्रोडक्ट प्राइस अभी हम लोग प्लेसिंग करें, इसके बाद हमने प्रमोशन को डिस्कस करना है। ओके जी, देन
decisions retailers have to take about their placing. Location कैसी होनी चाहिए? Location should be accessible to target a market. Then small retailers settle for whatever location they find and can afford. But small retailers को जो भी location मिलती है वो ले लेते हैं, जो वो afford कर सकते हैं वो location select कर लेते हैं. लेकिन जो large retailers हैं वो एम्प्लॉय करते हैं स्पेशलिस्ट को हु सेलेक्ट लोकेशंस फॉर देम. ठीक है. देन शॉपिंग सेंटर्स का पहले जो है कोई एक बिजनेस हब होता था, एक बिजनेस प्लेस होता था जहाँ पे सारे आउटलेट्स होते थे. लेकिन अब जो है शॉपिंग सेंटर्स का इमर्जेंस है. शॉपिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉपिंग सेंटर्स इवॉल्व हो रहे हैं, जिसमें आप ले लेते हैं रीजनल शॉपिंग सेंटर और रीजनल शॉपिंग मॉल, जिसमें नॉर्मली कंटेन्स 40 to 200 स्टोर्स होते हैं. इट अट्रैक्ट कस्टमर्स फ्रॉम वाइड एरिया. फॉर एग्जांपल सेंटोरस मॉल की एग्जांपल ले लें, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इस्लामाबाद की एग्जांपल ले लें, या मॉल ऑफ दुबई की एग्जांपल ले लें. ठीक है. रीजनल शॉपिंग सेंटर है, अट्रैक्ट कस्टमर्स फ्रॉम वाइड एरिया. दूर दूर से कस्टमर्स जो हैं वहाँ जाते हैं टू शॉप. देन हमारे आ जाते हैं कम्युनिटी शॉपिंग सेंटर्स आ जाते हैं, जिसमें कंटेन 15 to 40 रिटेल स्टोर्स हैं. नॉर्मली कंटेन्स अ ब्रांच ऑफ डिपार्टमेंट स्टोर एक होता है, कुछ स्पेशलिटी स्टोर होता है, एक प्रोफेशनल ऑफिसेज भी उसमें होते हैं, और समटाइम्स एक बैंक भी होता है. जैसे कि यूनिवर्सिटी रोड पे आप लोगों ने जवाहर टावर्स अगर देखा हो तो उसमें 15 to 40 स्टोर्स भी हैं, स्पेशलिटी स्टोर्स भी हैं, एक ब्रेकआउट का एक स्टोर भी है, उसमें डे टू डे का भी एक स्टोर है, डिपार्टमेंट स्टोर्स भी हैं, प्रोफेशनल ऑफिसेज भी हैं. ठीक है. देन हमारे नेबरहुड शॉपिंग सेंटर्स और स्ट्रिप मॉल्स हैं. 5 to 15 स्टोर्स होते हैं, डिस्काउंट स्टोर भी उसमें होता है. सेवरल सर्विस स्टोर्स होते हैं, लाइक ड्राई क्लीनर्स हो गया, आपकी फार्मेसी होती है, बार्बर शॉप भी होता है, हार्डवेयर स्टोर भी होता है. मीन्स जो हमारे नॉर्मली कन्वीनियंस गुड्स जो होते हैं, जो हमें डेली रूटीन में हमें चाहिए होते हैं, वो स्टोर्स होते हैं इसमें. इसमें आपके घर के करीब जो भी कोई मार्केट होती है, लाइक जाहिद मार्केट हो गई, पीपल मार्केट हो गई, बशारत मार्केट हो गई, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के कन्वीनियंट गुड्स के स्टोर्स अवेलेबल होते हैं. ठीक है. देन हमारे पावर सेंटर्स हैं. पावर सेंटर्स क्या हैं? ह्यूज अनइनक्लोज शॉपिंग सेंटर्स होते हैं, जिसमें लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ रिटेल स्टोर्स हैं, और ईच स्टोर हैज़ इट्स ओन एंट्रेंस. ठीक है. विथ पार्किंग डायरेक्टली इन फ्रंट फॉर शॉपर्स हु विश टू विजिट ओनली वन स्टोर. शॉपर्स नाउ प्रेफर टू शॉप एट लाइफस्टाइल सेंटर्स. ठीक है. शॉपर्स सिर्फ शॉपिंग करना नहीं चाहते, अब कस्टमर्स चाहते हैं कि हम जब शॉपिंग के लिए जाएं तो किसी लाइफस्टाइल सेंटर में जाएं, कन्वीनियंट लोकेशन हो, एक्सपेंसिव एक्साइटिंग एटमॉस्फेयर हो. सो ये सारे डिसीजंस, ये सारे पॉइंट्स जो हैं रिटेलर्स ने देखने होते हैं when they are doing business, when they are providing goods to the customers. So all these points should be keep into consideration. So that was all about today's lecture of channels of distribution, supply chain management in retailing. Hope you people have understand the concept of retailing, and if you have any question you can ask. Thank you.